Today we'll be talking about the first line drug for the treatment of Parkinson's disease. Parkinson's disease में क्या होता है? There is a deficiency of dopamine in the brain in certain areas of the brain, जिसकी वजह से एक triad of symptoms develop होते हैं which characterize Parkinson's. So Parkinson's में हमारे दो objectives होते हैं, either to increase the concentration of dopamine in the brain or to decrease the amount of acetylcholine in the brain, because acetylcholine का on the same pathways जिस पर dopamine act करता है उन pathways पर acetylcholine has the opposite effect. हम dopamine क्यों नहीं देते? Why don't we give dopamine? Why do we give L-Dopa? Because dopamine cannot cross the blood-brain barrier, लेकिन जो pro-drug है that can cross और brain में वो convert हो जाती है into the active form because of an enzyme known as the dopa carboxylase. ठीक है, you can see कि ये हमारे पास periphery show हो रहा है and over here we have the brain. ये है blood brain barrier. जब L-Dopa enter होता है तो it can be converted in the brain into dopamine. ठीक है, कौन सा enzyme convert करता है? Dopamine decarboxylase. So हमने first important बात discuss की कि why don't we give dopamine straight off? Why do we have to give levodopa? अब हम बात करते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की. levodopa की बहुत ही फास्ट absorption होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, so we can give it orally. ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो कि रेट ऑफ absorption को अफेक्ट करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल the rate of gastric emptying affects the rate of absorption. So if you take levodopa with food, that would have an impact on the rate of absorption. Secondarily, there are certain amino acids present in the food जो कि levodopa के साथ compete करते हैं for absorption into the bloodstream from the gut. And secondarily, ऐसे कुछ amino acids हैं जो कि compete करते हैं again with levodopa for absorption across the blood-brain barrier. ठीक है, so this is important, which is why you don't take levodopa and food at the same time. आप 20 to 30 minutes का gap रखते हैं. ठीक है, alright, this is actually very important. अच्छा, इन दोनों बातों के clinical implications हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा rapid absorption होती है L-Dopa की, so response fluctuations because of fluctuations in the plasma concentration is a very real concern. Secondarily, even though आप immediately साथ नहीं लेते food के साथ लेने का मतलब with the gap of 20-30 minutes does have certain advantages which we will discuss later when we will be talking about the adverse effects. So हमने start किया with dopamine. We've started with the mechanism. We've talked about the pharmacokinetics. हमने एक बहुत important बात discuss की है, the fact कि certain amino acids हैं जो कि dopamine के साथ compete करते हैं for absorption across the gut wall and again for absorption across the blood-brain barrier, as you can see in this particular image. ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम ये है कि जो levodopa आप देते हैं ना, it is also converted into dopamine by many dopa carboxylases which are located peripherally, यानी extracerebrally भी ये enzyme present होता है. So अगर आप सिर्फ levodopa देंगे ना तो सिर्फ 1 to 3% of the dose will actually reach the brain. The rest will be converted into dopamine peripherally. तो एक तो आपको डोज बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि बहुत कम एक्चुअली ब्रेन तक पहुंच रहा है, एंड दूसरी बात ये कि जो डोपामिन बन रहा है ना पेरिफेरी में, इट विल हैव मेनी एडवर्स इफेक्ट्स. इसीलिए आप levodopa कभी भी अकेले नहीं देते. यू ऑलवेज गिव इट in combination with a drug known as carbidopa, which is a dopa decarboxylase inhibitor. जो carbidopa है ना, it cannot cross the blood-brain barrier, वो पेरिफेरी में रहता है. पेरिफेरी में जो डोपा डिकार्बोक्सिलेजेस हैं उनको ये इनहिबिट करता है ताकि L-Dopa पेरिफेरी में कन्वर्ट ना हो इनटू डोपामीन. इसका क्या फ़ायदा होता है? levodopa की प्लाज्मा हाफ लाइफ बढ़ जाती है and the amount of levodopa available in the brain increases significantly. So when you give levodopa with carbidopa, तो जो dose है it reduces by 75%. You need to give 75% less levodopa when it is combined with carbidopa. हाफ लाइफ बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है. Bear in mind कि carbidopa cannot cross the blood-brain barrier. इसकी भी कुछ certain implications है other than the obvious which we will discuss later. ठीक है ना, हम अभी सिर्फ important बातें देख रहे हैं. अच्छा, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स के नाम देख लेते हैं.
homovinilic acid, and we also have something called dihydroxyphenyl acetic acid. ये तमाम बातें इंपॉर्टेंट हैं. जो चीज़ वो एमसीक्यू में पूछेंगे वो ये है, या फिर एससीक्यू में, कि रैशनल क्या है फॉर गिविंग लीवोडोपा विद कार्बिडोपा. द फैक्ट कि जो पेरिफेरली लोकेटेड लोकलाइज्ड डोपा डिकार्बोक्सिलेज है वो एडमिनिस्ट्रेड लीवोडोपा को कन्वर्ट कर लेता है डोपामीन में पेरिफेरली. सो लेस लीवोडोपा इज अवेलेबल in the brain first of all, and we have to give a very large dose of levodopa ताकि therapeutic effect आए. Secondarily, जो peripherally available dopamine है ना, it is responsible for many side effects, and they have some written over here: vomiting, arrhythmias, and postural hypotension. This I will also explain in a bit. This is actually quite interesting, and third year में जो आपने pharmacology पढ़ी थी ना, ये उसके साथ relate करता है. ठीक है, I will repeat. ये जो डोपा डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर है ना, it does not cross the blood brain barrier. ये इसको इनहिबिट करता है. इफेक्ट्स क्या होते हैं लीवोडोपा पर? हाफ लाइफ बढ़ जाती है, अवेलेबिलिटी इन द ब्रेन इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ डोपामीन पेरिफेरली डिक्रीजेस, एंड देयरफॉर साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं. तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है इफ अ क्वेश्चन ऑन रैशनल कम्स अप. ठीक है, ऑलराइट. क्लिनिकल यूजर्स, जनरली स्पीकिंग ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो रिस्पॉन्स है ना, इट डिमिनिशेस ओवर टाइम. इवन इफ इनिशियल, एक तो रिस्पॉन्स इंडिविजुअल बेस्ड होती है, सम पीपल रिस्पॉन्ड बेटर कंपेयर टू अदर्स. सेकेंडरली, इवन इफ शुरू में एक पेशेंट ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, 3 to 4 years later the response will almost invariably diminish. इसकी बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं. एक तो ये एक न्यूरोडिजेनरेटिव कंडीशन है. ओवर टाइम जब डोपामिनर्जिक नाइग्रोस्ट्राइटल नर्व टर्मिनल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो इट मेक्स सेंस कि व्हेन यू गिव L-Dopa which is converted into dopamine, the dopamine will no longer have any effect because the nerve terminals हैं, they have become destroyed जैसे कि डिजीज प्रोग्रेस कर रही है. एंड सर्टेन थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस लिमिटेड होता है टू द डोपामिन रिसेप्टर्स themselves, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिमिनिशमेंट इन द रिस्पॉन्स. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवर टाइम, ओवर अ कपल ऑफ ईयर्स, जो रिस्पॉन्स है टू लीवोडोपा, दैट इज रिड्यूस्ड सिग्निफिकेंटली, बिकॉज इवन इफ डोपामिन इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड, क्योंकि रिसेप्टर्स आर गेटिंग डैमेज्ड या फिर द नर्व टर्मिनल्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड, एज द डिजीज प्रोग्रेसेस the L-Dopa is not able to have the same amount of effectiveness. ठीक है ना? So this is actually super important. Alright. दूसरी बात ये है कि आपको ना, because adverse effects develop हो रहे होते हैं, तो वक्त के साथ साथ you have to actually reduce the dose. और आपकी कोशिश भी ये होती है कि minimum possible dose याद दें शुरू में भी. कितने टाइम में रिस्पॉन्स डिमिनिश होने लगती है? In about 3 to 4 years of therapy, यानी 3 से लेकर 4 साल की थेरेपी के बाद इनवेरिएबली जो रिस्पॉन्स है वो डिमिनिश कर जाती है. दे कैन आस्क यू कि डज दिस थेरेपी रिड्यूस और स्टॉप द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज? दैट इज नॉट ट्रू. पार्किंसंस डिजीज इडियोपैथिक है, देयर आर सर्टेन सेकेंडरी कॉजेज जिसमें जैसे कि ड्रग इंड्यूस्ड है, उसको आप स्टॉप कर सकते हैं बाय स्टॉपिंग द ड्रग और स्टॉपिंग द इंसाइटिंग एजेंट. लेकिन जो पार्किंसंस डिजीज़ है ना, विच इज़ अ प्राइमरी कंडीशन, उसकी आप प्रोग्रेशन को स्टॉप नहीं कर सकते हैं. बट इन ड्रग्स के ज़रिए यू कैन रिड्यूस द मोर्टालिटी रेट. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कंसेप्चुअली स्पीकिंग. अच्छा, एक फिनोमेना है, ऑन ऑफ फिनोमेना, विल डिस्कस दैट लेटर. तो हम कैसे देते हैं? आई हैव प्रीवियसली स्टेटेड कि आप लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं. ऑस्पी में दे आस्क यू टू राइट डाउन द प्रिस्क्रिप्शन. तो आप जनरली स्टार्ट करते हैं विद लो डोजेस लीवोडोपा और कार्बिडोपा की. यू गिव माय अपॉलॉजीज, यू गिव कार्बिडोपा 25 mg एंड लीवोडोपा 100 mg थ्राइस डेली, यानी TDS 20 to 30 minutes बिफोर मील. ये आपने बातें स्पेसिफाई करनी होती है. यू हैव टू मेंशन के नाम क्या है, कार्बिडोपा 25 mg, PO देते हैं, जो भी देते हैं, ठीक है. यू हैव टू मेंशन TDS, यू हैव टू मेंशन कि दीज आर गिवन 20 to 30 minutes बिफोर अ मील. ठीक है, बिकॉज एक साथ नहीं देते, अब्जॉर्प्शन कैन बी इम्पैक्टेड. ठीक है, माई अपॉलॉजीज. 30 to 60 minutes, not 20 to 30 minutes. दैट वाज अ ह्यूज मिस्टेक. 30 to 60 minutes.
ठीक है। अल्टीमेटली आपको डोज बढ़ानी पड़ती है और ज़्यादातर पेशेंट्स मेंटेन होते हैं एट अ डोज ऑफ कार्बिडोपा 25 mg, लीवोडोपा 250 mg। नोट कि कार्बिडोपा की हमने डोज को नहीं बढ़ाया बिकॉज जो मैक्सिमली रिक्वायर्ड कार्बिडोपा की डोज होती है ना वो होती है 75 mg डेली, एंड यू नो कि आपने 25 mg की टैबलेट देनी होती है दिन में 3 बार। So you normally don't increase the dose of carbidopa even though आप starting dose पर ही रहते हैं, although there are certain indications जिसमें आप slightly बढ़ा सकते हैं, there is no harm in that। ठीक है। so again keep this in mind। sometimes आप साथ में एक dopamine agonist दे देते हैं instead of increasing the dose। ठीक है। over here देखिए ये receptors है ना, ये जो नाम दिए हुए ना ये है dopamine agonist। ये actually non catecholamine structures हैं which have an affinity and efficacy for the receptors, for the dopamine receptors। नाम देख लें, bromocriptine है, pergolide है, propranolol है, and I have no idea how to pronounce this one, and pramiprazole है। ठीक है। Not that I am any good at pronouncing the other ones, लेकिन फिर भी ठीक है। तो ये कुछ हमारे हाई यील्ड पॉइंट्स हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा, रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशंस ना इज़ अ वेरी रियल प्रॉब्लम व्हेन यू गो विद लीवोडोपा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हाफ लाइफ बहुत कम है, 1 से लेकर 3 घंटे, बिकॉज ऑफ द रैपिड माय अपॉलॉजीज फॉर द रैपिड एब्जॉर्प्शन एंड रिलेटिवली रैपिड क्लियरेंस। ठीक है। सो एक फिनोमेना होता है वीयरिंग ऑफ फिनोमेना, जिसमें जो बेसिकली एफिकेसी है ना वो वक्त के साथ साथ कम होती जाती है। लाइक आपने डोज दी है, द पर्सन इज़ गुड फॉर अ कपल ऑफ आवर्स, जैसे कि लेवल्स कम होते हैं, जो सिम्टम्स हैं वो रिटर्न करते हैं। दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपल फिनोमेना, बट देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड द ऑन ऑफ फिनोमेना विच इज़ लेस सिंपल एंड विच इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ चेंज इन और अ फ्लक्चुएशन इन मोटर रिस्पॉन्स। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऑलराइट। अच्छा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशंस अवेलेबल हैं लीवो कार्बिडोपा की, और एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशंस भी अवेलेबल हैं कार्बिडोपा लीवोडोपा की। इन सब का मकसद यही होता है कि जो प्लाज्मा लेवल में फ्लक्चुएशन है वो मिनिमाइज हो ताकि वेयरिंग ऑफ फिनोमेना ना हो। एक ऑप्शन ये होती है विच इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड कि आप डायरेक्टली लीवोडोपा और कार्बिडोपा को इन्फ्यूज़ करते हैं ड्यूडेनम में या फिर अपर पार्ट ऑफ द जेजुनम में। ठीक है। और उन लोगों में ये काफ़ी एफिकेशियस साबित हुई हु हैव एडवांस्ड डिजीज विच इज स्टिल लीवोडोपा रिस्पॉन्सिव। ठीक है। उन लोगों में जिनमें एडवांस्ड डिजीज है, दे आर स्टिल रिस्पॉन्डिंग टू लीवोडोपा बट रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। अगेन ये एक मैटर है जिसकी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरिएशन है। कुछ लोगों में इतनी रिस्पॉन्स फ्लक्चुएशन नहीं होती, कुछ में बहुत ज़्यादा होती है। They have advanced disease, response fluctuations बहुत ज़्यादा है, which is quite tiresome, but they do still respond to levodopa। मसला levodopa की response का नहीं है। उन लोगों में you go for that option कि आप directly carbidopa और levodopa को infuse करते हैं into the upper jejunum or the duodenum। ठीक है। अच्छा, 3 symptoms होते हैं पार्किंसंस के। We have bradykinesia, we have tremors and we also have rigidity। एंड लीवोडोपा इन तमाम सिम्टम्स को अमेलियरेट करता है बिकॉज वीव स्टेटेड कि दिस इज़ अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, इट इज़ नॉट डिजीज मॉडिफाइंग एंड इट इज़ नॉट न्यूरोप्रोटेक्टिव। ठीक है। लेकिन बेहतरीन जो सिम्टम रिलीफ होता है ना वो ब्रेडिकाइनेसिया का होता है। ठीक है। इट ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट इन अमेलियरेटिंग द ट्रेमर्स एंड इन अमेलियरेटिंग द रिजिडिटी, बट बेस्ट इफेक्ट होता है इन अमेलियरेटिंग द ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब क्या होता है? डिफिकल्टी इनिशिएटिंग मूवमेंट, बिकॉज बेसल गैंग्लिया का भी रोल होता है ना इनिशिएटिंग मूवमेंट में। एक बेसिकली एक बैक एंड फोर्थ हो रही होती है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ, और इस बैक एंड फोर्थ की वजह से कोई मूवमेंट इनिशिएट होती है, जैसे कि यू स्टार्ट वॉकिंग और यू स्टॉप वॉकिंग, समथिंग लाइक दैट। तो ये ब्रेडिकाइनेसिया होता है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, ऑफ स्टार्टिंग और इनिशिएटिंग मूवमेंट। ठीक है। अच्छा, वील टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उससे पहले देख लें, we have levodopa। We give levodopa because dopamine cannot cross the blood-brain barrier। Unfortunately, levodopa can be converted peripherally। This is responsible for these side effects। इसको हमने bypass करने के लिए carbidopa दिया। किस डोज से हम स्टार्ट करते हैं? 25 mg carbidopa and 100 mg levodopa, although eventually आपको इसको increase करना पड़ता है वक्त के साथ साथ to 250 mg in the average person। ठीक है। और इसकी वजह से, इस कॉम्बिनेशन की वजह से, बिकॉज ये वाला पाथवे नहीं हो रहा, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोज भी कम देनी पड़ती है,
सेकेंडरीली जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी कम होते हैं, नॉट कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो जाते, कुछ ना कुछ कन्वर्जन फिर भी होती है, कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं बेसिकली। ऑलराइट, अच्छा, सिमिलरली वी कैन गिव दिस कॉम्बिनेशन टुगेदर विद अ डोपामिन एगोनिस्ट, जैसे कि वी हैव ब्रोमोक्रिप्टिन, परगोलाइड एंड प्रामीपेक्सिल, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस। इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट प्रॉब्ली इन अनदर वीडियो। जैसे कि हम इस पर्टिकुलर डिग्रेडेशन पाथवे को इनहिबिट कर सकते हैं बाय गिविंग एंटेकापोन, ठीक है। सिमिलरली ओवर हियर द सेम ड्रग्स कैन बी यूज्ड, हम ये वाले इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स टॉक अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टॉकिंग अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स, वी स्टेटेड कि बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, एंड जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट्स है ना वो बहुत कॉमन है। अगर लीवोडोपा अकेले में दी जाए तो 80% ऑफ पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद nausea, vomiting and anorexia, and the nausea and the vomiting is because of stimulation of the chemoreceptor trigger zone. जब आपने एंटीमेटिक ड्रग्स पढ़े थे तो बहुत सारे डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं सीटीजी में, H1, D2, ठीक है। तो इन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन की वजह से nausea and vomiting is seen. फॉर्चुनेटली जब आप लीवोडोपा को कार्बिडोपा के साथ देते हैं तो ये वाला जो पर्टिकुलर सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा इम्यूलेट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज मच लेस डोपामिन इज प्रोड्यूस्ड आउटसाइड ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। प्लीज़ नोट करें कि जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ब्रेन बैरियर, इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड ऑफ इट। तो जब ज़्यादा पेरिफेरली डोपामिन बनती है तो तब ये वाले सिम्टम्स आते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग और एनोरेक्सिया वाले। तो जब आप कार्बिडोपा के साथ देते हैं एंड लेस डोपामिन इज प्रोड्यूस्ड पेरिफेरली तो ये वाले सिम्टम्स कम आते हैं। लीवोडोपा अगर आप अकेले देंगे तो 80% पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद nausea एंड वॉमिटिंग। जब आप साथ में कार्बिडोपा देंगे 25 mg तो फिर सिर्फ 20% ऑफ द पेशेंट्स विल प्रेजेंट विद nausea एंड वॉमिटिंग। यू हैव टू नोट कि कौन से जो सिम्टम्स हैं लीवोडोपा थेरेपी के कैन बी ameliorated by carbidopa and which ones कैन नॉट बी ameliorated by giving carbidopa. एक दो और तरीके भी हैं इन सिम्टोमेटोलॉजी को रिड्यूस करने के लिए। इफ़ यू टेक द ड्रग with food and I don't mean at the same time, like with a gap, तो फिर ये symptoms कम आते हैं। अगर आप कम डोज देंगे फिर भी symptoms कम होते हैं, अगर आप डिवाइडेड डोज में देंगे फिर भी nausea and vomiting वाले symptoms कम होते हैं। You have to always remember that nausea and vomiting is because of stimulation of the chemoreceptor trigger zone which contains dopamine receptors, and जब आप levodopa देते हैं even with carbidopa, invariably some of it will be converted to dopamine, and invariably that dopamine will not cross the blood-brain barrier, will remain in the body and will act on various dopamine receptors, including the ones located on the chemoreceptor trigger zone, which is located outside of the blood-brain barrier, leading to the development of nausea and vomiting. ठीक है, कुछ लोगों में जो कार्बिडोपा की डोज है ना बढ़ा देते हैं above the normal daily dose of 75 mg, and this has also been seen to reduce the symptomatology of nausea and vomiting. अच्छा, सो एक तो आप कार्बिडोपा के साथ देते हैं जिसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी होती है ना पेशेंट्स की प्रेजेंटिंग विद these signs and symptoms is pretty much 1/4. सेकेंडरीली आप डिवाइडेड डोजेस में दे सकते हैं। थर्डली यू कैन गिव एन एंटी-एमेटिक, ठीक है, जो कि D2 को एंटागनाइज करता है। एंटीमेटिक्स में आपने दो पढ़े थे, डोमपेरिडोन एंड मेटाक्लोप्रामाइड, ठीक है, एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ ऑफ देम हैड एन इफेक्ट ऑन द रिसेप्टर्स इन द स्टमक, इन द गट, एंड ऑल्सो दे हैड एन इफेक्ट ऑन द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन। एंड वी नो वॉमिटिंग में एक तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन होती है कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन की, सेकेंडरीली सिग्नल्स आते हैं फ्रॉम द गट वॉल, सो बोथ वर क्वाइट इफेक्टिव, एंड वी नो दैट कीपिंग इन माइंड द कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इन दोनों में से हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे नॉजिया एंड वॉमिटिंग को कम करने के लिए? डोमपेरिडोन। मेटाक्लोप्रामाइड कभी नहीं देना। वाई? बिकॉज डोमपेरिडोन is very effective at inhibiting the D2 in the gut and the chemoreceptor trigger zone, but ये blood brain barrier को क्रॉस नहीं कर सकता। अगर आप मेटाक्लोप्रामाइड देंगे तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करेगा। इट विल इनहिबिट द डोपामिन रिसेप्टर्स लोकेटेड इनसाइड ऑफ द ब्रेन, एंड जो ऑलरेडी प्रेजेंट सिम्टम्स हैं पार्किंसनिज्म के, दे विल बिकम वर्स। मेटाक्लोप्रामाइड
का जो इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आपने पढ़ा था वॉज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं? वही होते हैं जो कि पार्किंसन में होते हैं। ऑलराइट, सो दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अगर आपने कोई एंटीमेटिक देना है तो यू आर नॉट सपोज टू गिव डम्पेरिडोन, माय अपॉलॉजीज, मेटोक्लोप्रोमाइड, यू गिव डम्पेरिडोन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसके अलावा देखते हैं, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पोस्टल हाइपरटेंशन इज समथिंग विच हैपन्स क्वाइट कॉमनली। ऐसा क्यों होता है? डोपामीन को आपने प्रॉब्ली ऑलरेडी स्टडी किया था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में और सीवीएस में भी। डोपामीन कैन पोटेंशियली एक्ट ऑन 3 रिसेप्टर्स। अच्छा, लोएस्ट डोजेस में ना इट ओनली एक्ट्स ऑन द D1 रिसेप्टर्स। 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं ना, D1, D2, D3, D4 एंड D5। D1 लाइक रिसेप्टर्स में वी इंक्लूड D1, D2 एंड D3, जबकि D5 लाइक में, माय अपॉलॉजीज, D2 लाइक में आई थिंक वी इंक्लूड D4 एंड D5। डोंट टेक माय वर्ड ऑन इट राइट नाउ, अभी मुझे याद नहीं है। बहरहाल 5 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एंड लोएस्ट डोजेस में जब डोपामिन बॉडी में होती है ना, इट्स गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन D1 ओनली। Moderate doses में it will have an effect on the alpha-1 receptors, जिस पर normally catecholamines act करते हैं. Dopamine is also a catecholamine. And highest doses में it's going to have an effect on the beta-1 receptors. ठीक है? So if you remember this, which you've already studied, the heading was the dose-dependent effects of dopamine. तो आपको side effects भी याद रहेंगे. ठीक है? So जो D1 stimulation है ना, we're talking about the D1 receptors located on the blood vessels. इस D1 स्टिमुलेशन की वजह से ना वेज़ोडाइलेटेशन होती है थ्रू आउट द बॉडी, स्पेशली किडनी की, विच इज़ एक्चुअली एन इफेक्ट जिसको हम एक्चुअली थेरेप्यूटिकली इस्तेमाल करते हैं कुछ कंडीशंस में, बट ओवर हियर वी आर गेटिंग सम साइड इफेक्ट्स। D1 स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है? पोस्टरल हाइपरटेंशन। जाहिर सी बात है वेज़ोडाइलेटेशन होती है D1 रिसेप्टर्स की वजह से। जब वेज़ोडाइलेटेशन होती है तो ऑटोमेटिकली ऑर्थोस्टैटिक स्लैश पोस्टरल हाइपरटेंशन डेवलप कर जाता है। जाहिर सी बात है दिस इज बिकॉज ऑफ पेरिफेरली लोकेटेड डोपामीन। तो अगर आप कार्बिडोपा देंगे तो ये वाला साइड इफेक्ट अनलाइकली होगा टू हैपन। सिमिलरली सर्टेन सीवियस रिस्क फैक्टर्स हैव बीन एसोसिएटेड विद गिविंग लीवोडोपा। कौन सी वाली? अच्छा, specifically tachycardia and ventricular extrasystoly has been associated, and very rarely atrial fibrillation has also been associated with levodopa therapy. ठीक है, यानी काफ़ी सारे a variety of cardiac arrhythmias have been described in patients receiving levodopa. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? Because we have more dopamine available and if you remember सबसे पहले dopamine बनता है, dopamine पर certain further enzymes act करते हैं जिसकी वजह से कैटेकोलामीन एंड नॉन कैटेकोलामीन बनता है। So if you have more dopamine available, first of all dopamine का direct effect भी हो सकता है बीटा 1 पर, secondarily there is more catecholamine available. अगर उन्होंने rational पूछा तो आपने कैटेकोलामीन वाला पॉइंट लिखना है because that is the one given in CATSUN. सही है ना? Again if you were to give carbidopa तो ये वाले side effects कम हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दिस इज़ एक्चुअली क्वाइट रेयर एंड इसके इंसिडेंस बहुत लो है इवन इफ़ यू गिव लीवोडोपा लोन, सो डोंट वरी टू मच अबाउट दिस। ठीक है, बट खैर जाहिर सी बात है एरिथमियाज हैं, सीरियस डील है, सो आप इसको ऑब्वियसली बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अच्छा, बल्कि अभी बता देती हूँ। मोस्ट पीपल डू हैव लिपिनकॉट एंड जो लेटेस्ट एडिशन है आई बिलीव लिपिनकॉट का पेज 108 पर देखें। फिगर 8.7 आई डोंट हैव इट विद मी राइट नाउ ऑन स्क्रीन, बट आप उसको देखें। इसमें दे हैव लीवोडोपा, एक ऊपर एरो जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। उसमें मैंने बेसिकली ये शो किया हुआ है कि व्हेन यू गिव लीवोडोपा विद पायरिडॉक्सिन तो जो एफिकेसी है वो कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज पायरिडॉक्सिन विच इज़ विटामिन B6 इज एक्चुअली अ कोफैक्टर फॉर डोपा डिकार्बोक्सिलेज। तो जब आप वाइल गिविंग लीवोडोपा थेरेपी जब आप साथ में विटामिन B6 देंगे तो मोर ऑफ लीवोडोपा विल बी कन्वर्टेड into dopamine peripherally, meaning less will be available to the brain and therefore जो therapeutic efficacy है वो सफ़र करेगी। नीचे वाला एरो ये शो कर रहा है कि जब आप लीवोडोपा देते हैं टुगेदर विद नॉन सेलेक्टिव मोनोइमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो जाता है। ऐसा क्यों है? आप लीवोडोपा दे रहे हैं विच इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू डोपामीन पेरिफेरली एंड दैट डोपामीन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नॉरपेनेफ्रिन। हमारी बॉडी में मोनोइमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दो तरह के होते हैं, ए और बी। बी को हम इस्तेमाल करते हैं इन पार्किंसनिज्म, ए को हम इस्तेमाल नहीं करते। ए इज गोइंग टू हैव एन इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरपेनेफ्रिन।
अगर आप एक नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर देंगे ना मोनोइमीन ऑक्सीडेज का, दैट विल इनहिबिट द डिग्रेडेशन ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड ऑल्सो द डिग्रेडेशन ऑफ डोपामीन। एंड ऑलरेडी आप एल डोपा दे रहे हैं और डोपामीन की अवेलेबिलिटी पेरिफेरी में बढ़ चुकी है और डिग्रेडेशन ना तो डोपामीन की हो रही है ना ही नॉरएपिनेफ्रिन की हो रही है। सो इफ यू गिव दैट L-Dopa together with a non-selective monoamine oxidase inhibitor, not a MAO-B, तो इससे क्या होगा? That would trigger a hypertensive crisis. जाहिर सी बात है, you don't want that. ठीक है? So this again is reduced by giving with carbidopa. This is very important. अगर आप Lippincott की वो इमेज देखेंगे तो you will not forget this really important point. सही है ना? अच्छा, इसके अलावा कुछ सर्टन और बातें हैं। अच्छा, देयर सर्टन जो गोल्डन रूल ये है कि दो तरह के हमारे पास साइड इफेक्ट्स होते हैं विच आर नॉट एमिलियोरेटेड बाय गिविंग द ड्रग टुगेदर विद कार्बिडोपा। ठीक है, एक होते हैं बिहेवियरल इफेक्ट्स जिनको हम साइकोटिक सिम्टम्स पे कहते हैं, दूसरा है डिस्काइनेसिया। बात करते हैं बिहेवियरल इफेक्ट्स की, कैसे बिहेवियरल इफेक्ट्स होते हैं, कैसे बिहेवियरल इफेक्ट्स आर सीन विद L-Dopa थेरेपी। कुछ ऑब्वियस सी बातें हैं जैसे कि and because commonly scenario में ये mention होंगी तो I'll state those first: delusions, hallucinations, nightmares, somnolence ज़्यादा नींद आना, insomnia कम नींद आना। ठीक है, hallucinations में क्या होता है? You see things that aren't there or you hear things that aren't there। ठीक है, anxiety and depression भी। alright, तो ये जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं ऐसे क्यों होते हैं? बिकॉज जब आप डोपा देते हैं तो डोपा कन्वर्ट होता है डोपामीन में, सो देयर इज मोर डोपामीन इन द ब्रेन and dopamine receptors सिर्फ basal ganglia पर नहीं है, they're also located in other areas. So if there's an excess of dopamine तो ज़्यादा एक्टिविटी की वजह से साइकोटिक सिम्टम्स होंगे। ठीक है, this is why L-Dopa therapy is contraindicated in someone with psychosis। और एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और L-Dopa को साथ देने की कोई तुक नहीं है, they're going to inhibit each other। But अगर आप L-Dopa थेरेपी किसी पेशेंट को दे रहे हैं who is not psychotic but because of the therapy is developing symptoms of psychosis, तो इसको आप जाहिर सी बात है कार्बिडोपा देकर तो नहीं कर सकते, बिकॉज कार्बिडोपा देने से तो एक्चुअली ये सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। बिकॉज कार्बिडोपा की अगर आपने डोज बढ़ाई तो मोर डोपामीन विल बी प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड वो सिम्टम्स जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे दे वुड एक्चुअली बिकम वर्स। तो कार्बिडोपा देने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन पेशेंट है, डिपेंडेंट है L-Dopa पर, आप L-Dopa रोकते हैं, साइकोसिस के सिम्टम्स तो ठीक हो जाते हैं लेकिन मोटर सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। सो यू वांट टू एमिलियोरेट दी साइकोटिक सिम्टम्स, तो आप क्या करेंगे? कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, आई प्रीवियसली स्टेटेड के ये कॉम्बिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन कुछ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं विच हैव लो अफिनिटी फॉर D2 जो कि एक्चुअली हेल्प करती हैं विद द सिम्टम्स। ठीक है, विदाउट कॉजिंग अ लॉस ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, वी हैव क्लोज़ापीन and we have quetiapine। ठीक है, I'll probably try and write it over here, clozapine and quetiapine। ठीक है, clozapine and quetiapine, तो ये important है। ये atypical antipsychotics हैं जो कि आप देते हैं उन patients में who are dependent on L-Dopa therapy and who are developing symptoms of psychosis because of the therapy। बिकॉज कार्बिडोपा देने से तो सिम्टम्स एक्चुअली वर्स हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेटर। ठीक है ना, बिहेवियरल कॉम्प्लिकेशंस। कुछ और बातें भी हैं, देयर समथिंग कॉल्ड डोपामीन डिसरेगुलेशन सिंड्रोम, जिसमें विल टॉक अबाउट दैट लेटर। अच्छा, डिस्काइनेसिया का क्या मतलब है? देयर बेसिकली काइनेसिया मीन्स मूवमेंट। दिस इज ए हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर। बेसल गैंग्लिया में दो तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, एक होते हैं हाइपोकाइनेटिक लाइक पार्किंसंस, ऑल्दो पार्किंसंस में टेक्निकली हाइपरकाइनेटिक एलिमेंट भी है, एंड हाइपोकाइनेटिक डिसऑर्डर्स लाइक कोरिया, एथिटोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। यू स्टडीड दैट इन फिजियोलॉजी लास्ट ईयर। तो ये सिम्टम्स है ना डिस्काइनेसिया के, ये क्यों डेवलप होते हैं? व्हेन देयर इज टू मच डोपामीन इन द ब्रेन एंड टू मच स्टिमुलेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया दैट लीड्स टू एक्सेसिव अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स नोन एज डिस्काइनेसियाज। और इनमें से भी सबसे कॉमन क्या होता है? कोरियोएथिटोसिस ऑफ द डिस्टल एक्सट्रेमिटीज एंड द फेस। जाहिर सी बात है कार्बिडोपा देने से कोई फायदा नहीं होगा, इट विल सिंपली गेट वर्स फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि जो डिस्काइनेसियाज है ना, दे आर वेरी कॉमन इन पेशेंट्स टेकिंग these drugs, and among the drugs used in anti-Parkinsonism, dyskinesia is most commonly associated with levodopa. This is important.
ठीक है, 80% जो पेशेंट्स हैं ना विल प्रेजेंट विद डिस्काइनेसिया बिकॉज ऑफ टू मच डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन द ब्रेन और टू मच स्टिमुलेशन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। रिकॉल फ्रॉम योर फिजियोलॉजी स्टडीज के हम दो तरह के डिसऑर्डर्स पढ़ते थे व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द बेसल गैंग्लिया। एक तो हम पार्किंसंस को ब्रीफली टच करते थे एंड देन वी टॉक अबाउट कोरियोफॉर्म मूवमेंट्स, एथिटोसिस एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए आपको ये वाला साइड इफेक्ट नहीं भूलेगा। कोरियोएथिटोसिस में क्या होता है, मूवमेंट्स होती है फेस एंड डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ की। अगेन इसमें कंसिडरेबल इंडिविजुअल वेरिएशन है कि किन लोगों में ये डेवलप होता है, किस उम्र में डेवलप होता है, कितनी डोज पे डेवलप होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात नोट हुई है कि अगर आप किसी तरीके से कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर करें लीवोडोपा को, जैसे कि इन्फ्यूजन मेथड से या एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन से, तो तब भी जो डिस्काइनेसिया वाली सिम्टोमेटोलॉजी है ना वो कम आती है। ठीक है, सो इसलिए हमारे पास थ्योरी ये है कि जो क्रॉनिक पल्सेटाइल स्टिमुलेशन है ना रिसेप्टर्स की, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिस्काइनेसिया। तो अगर आप कंटिन्यूसली देंगे तो कंटिन्यूस स्टिमुलेशन होगी ना, पल्सेटाइल स्टिमुलेशन तो नहीं होगी ना। सो अगर आपने फॉर एग्जांपल इन्फ्यूजन के ज़रिए कंटिन्यूसली एडमिनिस्टर किया या फिर एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन से एडमिनिस्टर किया है, तो डिस्काइनेसिया अकर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट एंड मैं बिग कैटजिंग से तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर रही हूँ। ठीक है, रिवाइवर्स के लिए ऑल ऑफ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। बात को मैंने फर्दर एक्सप्लेन किया हुआ है कि a lower incidence of dyskinesia occurs when levodopa is administered continuously and with drug delivery systems that enable a more continuous delivery of the drug. अगर माइल्ड डिस्काइनेसिया तो ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ऑन ऑफ फिनोमेना में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली समथिंग विच हैपन्स विद क्रॉनिक थेरेपी। उसमें दो तरह की फेजेस डेवलप हो जाती हैं विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्लाज्मा कंसनट्रेशन। ये एक एमसीक्यू हो सकता है। जब बंदा ऑन फेज में होता है ना, दैट पर्सन इज रिलेटिवली फाइन ऑल्दो डिस्काइनेसिया के सिम्टम्स हो सकते हैं। ठीक है, इमोबिलिटी इज गुड। जब वो ऑफ फेज में आता है ना कुछ ही घंटों बाद, तो वो इमोबाइल हो जाता है एंड वो सारे पार्किंसन के जो सिम्टम्स हैं ना वो वापस आ जाते हैं। सो ये ऑन ऑफ फेज के बीच में रोटेट करता रहता है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड द ऑन ऑफ फिनोमेना। अच्छा, ये एक तकरीबन इनवेरिएबल कॉन्सिक्वेंस है सस्टेन्ड लीवोडोपा ट्रीटमेंट का। आपने कुछ सालों तक लीवोडोपा अगर ट्रीटमेंट दिया है ना किसी पेशेंट को, तो इनवेरिएबली वो डेवलप कर लेगा ऑन ऑफ फिनोमेना को। इसमें क्या होता है, फेजेस होती हैं। फेज होती है इमोबिलिटी और इनकैपेसिटी की। ठीक है, और साथ में डिप्रेशन होता है। एंड ये जो फेज है ना ये ऑल्टरनेट करती है विद जुबिलेंट थॉट्स, जिसमें पेशेंट नॉर्मल हो जाता है, उसकी मोबिलिटी वापस आ जाती है एंड द पर्सन फील्स बेटर। तो ये ऑल्टरनेशन है ऑफ फेजेस ऑफ इमोबिलिटी एंड इनकैपेसिटी विद डिप्रेशन एसोसिएटेड विद जुबिलेंट थॉट्स। अच्छा, similarly, because of the fact कि alpha 1 receptors are located in the eye, तो midriasis भी हो सकती है, which also accounts for the contraindication in someone with acute angle closure glaucoma। और भी दो तीन बातें हैं। अगर कोई पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का पेशेंट है तो उसमें आपने कॉशियसली देना है। उसकी वजह ये है कि लीवोडोपा थेरेपी हैज़ बीन एसोसिएटेड विद एक्टिव ब्लीडिंग इन पेशेंट्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मैनी। मिडरेसिस वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, वन थिंग आई फॉरगॉट कि जो ऑन ऑफ फिनोमेना में पेशेंट है ना, जो कि इस बंदे ने डेवलप करना ही करना है। अगर फॉर एग्जांपल बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा है तो इट्स ऑलमोस्ट सर्टन कि एट सम पॉइंट वो डेवलप करेगा। तो जो ऑफ वाली फेज है ना, उसमें जो फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, उसमें जो इमोबिलिटी है, उसको एमेलियोरेट करने के लिए एपोमॉर्फिन इज गिवन। एपोमॉर्फिन क्या है, वो है एक डोपामीन एगोनिस्ट, एक पुराना डोपामीन एगोनिस्ट है। आप नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते एक्सेप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर इंडिकेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ऑलराइट, अच्छा, सो हम इसके अलावा ड्रग हॉलीडेज का ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ड्रग हॉलीडेज के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग वीनस थ्रोम्बोसिस, डिप्रेशन एटसेट्रा। ठीक है, ड्रग इंटरैक्शंस आई हैव टॉक्ड अबाउट। पायरोडॉक्सिन के साथ नहीं देना, थेरेप्यूटिक इफेक्ट कम हो जाता है। You should not give it to someone on non-selective monoamine oxidase inhibitor therapy। ना ही आपने ऐसे बंदे को देना who is using monoamine oxidase A inhibitors। ठीक है, not B के साथ दे सकते हैं। ठीक है, ना ही आपने देना है within 2 weeks of discontinuation। ठीक है, 2 वीक का वक्फा होना चाहिए दोनों के बीच में हाइपरटेंसिव क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए। अगेन
साइकोटिक पेशेंट्स में आप लीवोडोपा नहीं दे सकते बिकॉज साइकोटिक सिम्टम्स भी होते हैं। एंगल क्लोजर ग्लूकोमा में इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो ये हमारे पास 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन है, साइकोटिक पेशेंट्स में नहीं देना, पेशेंट्स जिन्हें एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है उन्हें नहीं देना, ठीक है। अगर पेशेंट है पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का, उसे भी नहीं देना, एक्टिव ब्लीडिंग के साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, डोपामीन इज एक्चुअली अ प्रीकर्सर फॉर ए पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। बायोकेमिस्ट्री में आपने ये सारे पाथवेज पढ़े थे। सो अगर एक पेशेंट को मेलिग्नेंट मेलानोमा है या फिर सस्पेक्टेड कोई लीजन है तो उसको भी आपने लीवोडोपा नहीं देना बिकॉज देयर इज अ पॉसिबल कोरिलेशन बिटवीन malignant melanoma proliferation and levodopa because आप कैसे दे रहे हैं ना, you're sort of giving a substrate to the neoplasia। तो malignant melanoma में नहीं देना, अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज का पेशेंट है उसको नहीं देना, साइकोटिक पेशेंट को नहीं देना, ठीक है। जिस पेशेंट को एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा है उसे भी नहीं देना, बल्कि मैं इसको लिख ही देती हूँ। सो I've written these over here ताकि आप स्क्रीनशॉट्स ले सकें। इधर आप क्या ऐड करना चाहेंगे? ओवर हियर वी कैन ऐड द फैक्ट कि TX में आप क्या देते हैं, टॉमपेरिडोन। आपने याद रखना है कि वी आर नॉट सपोज टू गिव मेटाक्लोप्रामाइड, ठीक है। सो वो बात भी इंपॉर्टेंट है। आई विल मेक दिस ब्लैक। ये बात इंपॉर्टेंट है, 80% 20% इफ यू गिव इट विद कार्बिडोपा, ठीक है। पोर्शन हाइपरटेंशन वाली बात भी इंटरेस्टिंग थी बट नॉट दैट मच। इरिथमिया वाले पॉइंट में याद रखना है कि इंसिडेंस बहुत कम है, होता टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टलीज है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। और मिड्रिएसिस वाली भी रिलेटिवली इंपॉर्टेंट ही है। सो वी आर डन विद मोस्ट ऑफ द वेरी हाई यील्ड पॉइंट्स, ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस वही हैं जिनकी मैं बात कर चुकी हूँ। ड्रग इंटरेक्शन में यू शुड नेवर फॉरगेट पायरिडॉक्सिन एंड मोनोएमीन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स, ठीक है। इसके अलावा ड्रग हॉलिडे की ऐसा कोई एफिकेसी नहीं है। डिस्काइनीजिया वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये 2 ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं